happy International Men's Day to you, who had acknowledged the significant contributions that men make to a society. But we have always believed in a myth. A man's man is not weak and should not cry. Is it? Men have been taught to not feel, express, display emotion, and certainly not to cry. But thanks to all the social taboo that has been built up around it for the centuries. But this is untrue. Man has the freedom to freely express his sentiments, emotions, and affection. Myself, Pragya Jain, welcomes you to celebrate the manhood of our Series 2, initiated by She the Power and supported by iWipnan. So, this initiative was taken to discuss the finest male role models and spread awareness of men's well being. So, today we have on board Mr. Siddharth Mandlewala, who is the Senior Vice President and Fund Manager at Concept Investwell. Mr. Siddharth Mandlewala has 15 years of experience in Indian capital market. By qualification, he is an MBA, specialization in finance. He has thorough knowledge of all macro and microeconomic aspects. He has very good understanding of fundamental analysis. He possesses good judgment and has high level of skin in the game, as all of his saving is into equities. So that's very great, Mr. Siddharth Mandlewala. So before carrying forward to the interview series, we have Ms. Shruti Sheth on board. So Ms. Shruti Sheth is the co-founder of iWipnan Digital Marketing Services and Charismatic Academy based in Surat. She has more than 15 years of experience and hold Masters of Business Administration in Finance specialization. In 2017, she started a community called She the Power. The community runs regular online talk shows and webinars inviting female working professionals from different parts of the country. In fact, she started running a digital girl campaign for college and university girls across Gujarat to empower and sensitize females for internet privacy and social media security. The other noteworthy campaigns which have been done by her are Influence Her, Techie Moms, Unsung Heroes, and Being a Man. She has also received an award of Leader in Marketing from International Women Leader Forum in Mumbai 2021. She was also declared as 40 under 40 most disruptive minds in the field of marketing by Agency Reporter 2021. So yeah, let's start with our interview series of celebrating manhood. I hand over to Ms. Shruti Sheth. Thank you. Thank you so much, Pragya, for beautiful introduction. So, Welcome. business scenario. Thank you so much. So, business scenario is changing in today's time. रोज कुछ ना कुछ नए, हर बिजनेस में नया आता है, नए चैलेंजेस आते हैं. हमारे जो यूथ है, कई बार उनको बहुत एडवाइस की ज़रूरत होती है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है. सो इन दिस सीरीज़ हम लोग ने ये ट्राई किया है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेन, वो हमें, जो अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, वो हमें इस तरह से गाइड करे कि हमारे यूथ माइंड है या हमारे जो भी ऑडियंस है उनको हेल्प कर सके अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए. नॉर्मली हम सबके पास ये होता है कि फाइनेंस है, पर कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या करें तो हमारे पास और प्रोडक्टिविटी या हमारा फाइनेंस अच्छी जगह पे यूज हो सके, हमें उसका अच्छा रिटर्न मिल सके. सो वी हैव सिद्धार्थ मांडलेवाला विद अस. सिद्धार्थ, लास्ट 10 इयर्स में आपके फील्ड में क्या ऑब्जर्व किया है कि मिडिल क्लास लोग हैं या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू श्रुति एंड प्रज्ञा फॉर इनवाइटिंग मी. एंड आपके व्यूअर्स को शायद श्रुति पता नहीं होगा कि हम दोनों एडवेंटिस्ट कॉलेज में साथ में किया है. And we completed it in 2006 and today we are again back in 2022. So I am happy to share this platform with you, Siddharth. Same here. I am totally excited about this. So coming to your now question, see, मैं 15 साल से after completing my MBA मैंने capital market ही join किया और Concept Investwell company ही join की थी बाद में. And still I am with the same job.
तो ये दौरान मैंने जो ट्रांजिशन देखा है मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में, वो ये है कि तब का जो इन्वेस्टर था वो काफी फियरफुल इन्वेस्टर था, वो बहुत डर डर के इन्वेस्ट करता था और वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाता था। आज के इन्वेस्टर जो है वो काफी इवॉल्व हुए हैं थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सेमिनार्स, वेबिनार्स, चैनल्स, CNBC, ET नाउ, ये सब चैनल्स पे भी जो हमें ज्ञान मिल रहा है। इवन IPL या वर्ल्ड कप में भी देखते हैं तो बाद में एड्स में जो आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। थैंक्स टू ऑल दिस थिंग्स के इसके वजह से इन्वेस्टर काफी इवॉल्व हुआ है और अभी वो अलग तरीके से सोचता है। पहले तो क्या था कि ट्रेडिशनली पीपल यूज्ड टू बाय रियल एस्टेट एंड गोल्ड, ये दोनों चीज ऐसी थी कि फिजिकल एसेट है, दिखता है हमें, तो इसके वजह से वो टच कर सकते हैं, इसके वजह से वो लोग लेते थे। लेकिन अभी का जो इन्वेस्टर है वो एसेट एलोकेशन में भी मान रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे फिजिकल एसेट ही लेना है, ही इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स। और अभी जो नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड इज अ ओल्ड प्रोडक्ट, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो गया, PMS हो गया, AIF हो गए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, एंड इवन अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन आर्ट, वो भी एक अभी मेट्रोज में और काफी प्रेवलेंट हो रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन के इन्वेस्टर्स हैव मैच्योर्ड अ लॉट। और अभी जब भी पैनिक होता है, जैसे कोविड आया था, तो उस टाइम पे हार्डली मुझे 2-3 फोन आए थे, उसके अलावा इतने फोन्स नहीं आए थे। उसके पहले 2009 में वी गॉट अ नंबर ऑफ कॉल्स, जब 2008-9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब पीपल यूज्ड टू पैनिक एंड दे यूज्ड टू सेल। लेकिन इस बार कोविड में तो उल्टा हुआ, लोगों ने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट मोर। तो दिस इज द चेंज व्हिच वी हैव सीन। और लास्ट 2 साल में भी अगर आप देखोगे श्रुति, तो FIIs कंप्लीटली इंडिया में से काफी पैसा उन्होंने निकाला है। टू गिव यू अ प्रिसाइज नंबर, लास्ट 1 ईयर में दे हैव टेकन आउट $50 बिलियन। उसके सामने DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो रिटेल से आता है। तो दे हैव जम्प्ड इन लाइक एनीथिंग। और अभी हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 13,000 करोड़ पैसा आ रहा है, एवरी मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ह्यूज मनी इज चेजिंग इक्विटी मार्केट्स, और दिस इज द इवॉल्व थिंग व्हिच आई हैव सीन इन रिटेल इन्वेस्टर एंड मिडिल क्लास इन्वेस्टर। सो सिद्धार्थ, वी कैन से कि पीपल का जो लोग हैं उनके नॉलेज बढ़ा है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। एज यू सेड कि अगर नॉर्मल किसी लेमैन को भी पूछे तो एक चीज होती है कि तुमने अभी तक SIP नहीं करवाई। You know, it's a compulsion of life, even for a small investor, or maybe when we talk about any housewife. You know, अब तो हाउसवाइफ की भी ये बात हो गई है कि उनका खुद का भी एक सेविंग में से they used to do SIP. So it's correctly said कि people, मतलब लोगों को नॉलेज बढ़ा है ये चीज में। तो this is the transformation we can see. How do you see young working professional for the knowledge and understanding for investment? Do you think they are not so serious about it, especially at young age? See, मेरे साथ जो मेरी टीम है, उनकी अगर मैं एवरेज एज देखूं तो इट इज अराउंड 23-24 इयर्स। सो उनको जब मैं उनके साथ लंच लेता हूँ या हमारी रेगुलर जो मीटिंग्स होती हैं, या इवन आई हैव मेनी फ्रेंड्स के जिनके साथ मैं बॉक्स क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो वहां पे भी जो मैं ऑब्जर्व करता है उन लोगों के पास, तो 2 चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एक ये है कि दे वांट टू लिव इन प्रेजेंट, वो लोग को प्रेजेंट में खुश रहना है, और इसके लिए वो लोग जो प्रेजेंट टेंस में जो चीजों से उनके खुशी मिलती है, वो चीज को वो डिले नहीं करना चाहते हैं। जैसे घूमने जाना, हाइकिंग पे जाना, ट्रेकिंग पे जाना, आउट ऑफ इंडिया कंट्री विजिट करना, तो ये सब दे विल नॉट डिले इट लाइक आवर पेरेंट्स डिड। पेरेंट्स क्या कर रहे थे कि भाई पहले सेव करो, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो, अपने रिटायरमेंट का भी थोड़ा बहुत सोचो, और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उससे वो लोग अपने एम्बिशंस पूरे करते थे। आज का यूथ ऐसा नहीं है। आज का Gen X जो हम बोलते हैं, वो आज प्रेजेंट टेंस में जीना चाहता है, क्योंकि कोविड ने अगेन हमें सिखा दिया है कि कल हो ना हो, राइट। तो वी नीड टू लिव इन प्रेजेंट टेंस, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एट द सेम टाइम यही यूथ ऐसा भी मानता है कि बाय 40-45 of age I want to retire, I want to be financially free,
यानी रिटायर का ऐसा मतलब नहीं है कि वो घर पे बैठ जाएगा, लेकिन उसको फिर किसी के अंडर में काम नहीं करना है, फिर उसको अपना खुद का बिजनेस हो या खुद से ही काम करना है, किसी के अंडर में नहीं रहना है। तो फॉर दैट अगेन ही वांट्स टू सेव एंड इन्वेस्ट, क्योंकि 40-45 पे जब वो फाइनेंशियली फ्री कब बन पाएगा, जब वो अभी से जो पैसा उसके पास आ रहा है उसका सब्सटेंशियल अमाउंट वो सेव करेगा और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये दोनों चीजें मैं देख रहा हूँ और दोनों चीजें हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सेविंग कर रहा है और या फिर सिर्फ वो उड़ा रहा है, दोनों चीजें हो रही है। और दूसरा, जैसे आगे हमने पॉइंट में क्वेश्चन में बोला कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका ग्राफ ऐसे जाता है कि पहले ऐसे स्ट्रेट होता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो पहले के 10-15 इयर्स यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सेव अ लॉट, लेकिन कुछ कैपिटल बनता नहीं है। लेकिन 15 साल के बाद पूरा ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ जाता है और फिर पैसा बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि पहला करोड़ बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 1 करोड़ अगर आपका बन गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होता है। तो यही चीज यूथ में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और दूसरा, ये यूथ ने स्कैरसिटी भी नहीं देखी है। जैसे पहले के जनरेशन ने एक फोन उनको लेना हो तो 1 साल लग जाता था, एक स्कूटर उनको लेना हो तो 2 साल लग जाते थे। आज का यूथ ने तो ये स्कैरसिटी देखी ही नहीं है, उसको फोन चाहिए तुरंत मिल लिया, ईएमआईज इजीली अवेलेबल है। मेरे पापा ने लाइफ में कभी लोन नहीं लिया था, लेकिन आज मैं इजीली ईएमआई से लोन ले लेता हूँ, क्योंकि वो टेंशन, वो बैगेज नहीं लगता है ये यूथ को, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ लगता है। करेक्ट। तो ये डिफरेंस है, पर इससे घबराने जैसी चीज नहीं है। इंडिया का यूथ बहुत बढ़िया है और वो अच्छा ही करने वाला है। सिद्धार्थ, दैट इज करेक्टली सेड। आज के जो यूथ है वो, इवन यूथ में भी ये चीज है कि यंग एज में दे आर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। जब एक बिफोर 10 इयर्स या 15 इयर्स की बात है, तब इतना अवेयरनेस नहीं था कि चलो कॉलेज में हो तो वेदर आई शुड स्टार्ट और नॉट। बट दिस यूथ, दे आर वेरी क्लियर। सो वो लोग अपने जो टीवाई में आते हैं या तो फर्स्ट ईयर से, दे हैव देयर ओन SIPs और देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। सो इट इज वेरी गुड ऑन देयर पार्ट कि यंग माइंड्स, दे आर स्टिल अवेयर कि नहीं, एज यू सेड, कि कल हो ना हो तो उनको अपना प्लेजर या अपना जो इवन बच्चों का एजुकेशन, बिफोर दे गेट मैरिड और दे गेट इनटू रिलेशनशिप, दे आर वेरी क्लियर कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें इनको ये चीज पढ़ानी है तो इतने पैसे लगेंगे। Rightly said. Right. So Siddharth, market is unpredictable. Still people will, मतलब लोग फिर भी ये समझते हैं कि हम कभी भी इन्वेस्ट खुद कर सकते हैं, without any advisor. So what do you think is the right attitude to invest in stock market? Shruti, very good question. Again, telling from my experience कि equity investing या कोई भी investing सिर्फ आप पार्ट टाइम या फिर एकदम शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते हो। इट बिल्ड्स अप विद एक्सपीरियंस और इसमें विजडम की बहुत जरूरत होती है। तो इसके लिए मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि इनिशियल फेज ऑफ योर कैरियर में जो भी इन्वेस्ट हमें करना है, तो उसमें किसी की एडवाइस हम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि राइट अप्रोच मिलेगा, कैसे आगे बढ़ना है उसकी थोड़ी गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि जो भी एडवाइजर होगा उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा। दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्ट तो आपने अगर कर लिया अपने नो हाउ से, अपने नॉलेज से, लेकिन जब टफ टाइम आता है तब हाउ यू रिएक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आगे हमने बात की कि कोविड आया था, तब मार्केट इन 1 month वाज डाउन 30-35%। अभी उस टाइम पे अगर आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया होता और आप अगर पैनिक में आ गए होते और आपने अगर बेच दिया होता, क्योंकि आगे का पूरा सीन हमें पता ही नहीं था, लॉकडाउन 3 महीने का लगने वाला था, राइट? तो नोबडी न्यू कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ऐसे टाइम पे विजडम और एक्सपीरियंस बहुत काउंट कर जाता है। तो जैसे मुझे भी 2-3 जो फोन्स आए थे, तब हमने उनको वही समझाया था कि सर ऐसे टाइम पे तो आप अगर हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि जब भी मार्केट में ऐसे फॉल्स आए हैं, तब आप किसी ने पैसे निकाले हैं तो वो वर्स्ट थिंग हुई है उसके साथ, और फिर बाद में उसको कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है पैसा डालने के लिए, बी इट 2008, बी इट 2000.com बबल और बी इट 2020।
तो ये मार्च महीने में किसने पैसा डाला होता तो बहुत पैसा बना है, लेकिन किसी ने अगर पैसा निकाल दिया तो उसको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फिर से डालने के लिए। तो ये जो टाइम होता है वो टाइम में एडवाइजर विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू द टफ टाइम। तो नेविगेशन जो करना है उसके लिए एडवाइजर बहुत जरूरी होता है। वो आपको पेशेंस सिखलाता है, वो आपको पास्ट के डेटा लाके देगा कि भाई ये ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए एडवाइजर इंपॉर्टेंट है। बाकी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग में मैं ऐसा मानता हूं कि इंटेलिजेंस का रोल 10% है, 90% रोल इज पेशेंस। तो आप कितने पेशेंस आप में कितनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 100% इस तरह होता है और इस तरह पैसा बनता है इक्विटी इन्वेस्टिंग में। सिद्धार्थ, एज यू सेड, एक चीज है जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कई बार कि लोग गूगल करने के बाद हमारे पास सेकंड ओपिनियन लेने आते हैं। so, या इट इज सेड, डॉक्टर्स भी ये चीज कहते हैं कि लोग सेकंड ओपिनियन हमसे लेते हैं। तो सेम इज द सेम इज द केस, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इन इन्वेस्टर्स आल्सो, कि लोगों को लगता है कि एक बार या तो गूगल कर लिया, इट्स नॉट अबाउट कि हर बार लोग गलत ही होते हैं, बट समटाइम्स यू नो व्हेन यू रिक्वायर एक्सपर्ट तो आपको वहां पे उनकी जरूरत होती ही है। करेक्ट। As you said, इसमें जस्ट ऐड ऑन करता हूँ कि हम लोग घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, हम लोग केस लड़ना है तो लॉयर को हायर करते हैं, हम लोग को कुछ होता है तो डॉक्टर को जाके मिलते हैं और तुरंत फीस भी दे देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग तो लोगों को थोड़ा पेन होता है पैसे देने में पर ये चीज है, पर अगेन इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो मेट्रोज में ये चीज बहुत मैंने देखी है कि पीपल आर इंक्लाइंड टू गिव मनी टू देयर एडवाइजर्स, और वो लोग उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं, और ये यूएस में भी ऐसा ही है। तो अभी ये टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी परकोलेट हो रहा है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टियर 1, सो सूरत में भी ये चीज हो सकती है। राइट। Siddharth, as a male fund manager, how do you see female investors' behavior and what's your observation so far? Again, Shruti, very good question. See, मैं तो ladies से घिरा हुआ हूँ. My mother is a very good investor. My wife, again, she invests. और अभी मेरी डॉटर 5 years की है, लेकिन जब वो उसका जन्म हुआ था तब से वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हर अकाउंट। तो मैंने अभी उसकी बर्थडे गई तो मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि व्हेन शी विल टर्न 18 शी वुड बिकम अ करोड़पति। तो मैं लेट हूँ शायद। हाँ, मैं लेट हूँ करोड़पति बनने में। तो ये है। फिर अगेन आई हैव मेनी फीमेल कलीग्स इन माय टीम। आवर हेड ऑफ रिसर्च इज अ लेडी, तो उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि हाउ शी रिएक्ट्स टू सर्टेन सिचुएशंस, हाउ शी एनालाइजेस अ कंपनी। अगेन मेरे दूसरे भी काफी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो लेडीज हैं और जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऑनेस्ट व्यू दूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि लेडीज आर अ गुड फंड मैनेजर देन मैन। ये मैं बोल सकता हूँ, डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। अगर मेरा कंपैरिजन मैं किसी लेडी फंड मैनेजर के साथ करूंगा तो लेडी फंड मैनेजर्स आर बेटर। और ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा दिखाने के लिए, पर इसके पीछे रीजंस हैं। और रीजन क्या है, किसी लेडीज में मैंने हमेशा से देखा है कि दे आर वेरी पेशेंट। वो लोग नॉइज और जो शॉर्ट टर्म में जो सिचुएशंस क्रिएट होती है उनको वो अच्छी तरह झेल सकते हैं और उससे बाहर निकलने के रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। उसके सामने हम जो मेल हैं उनके डीएनए में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना या शांति से बैठ नहीं सकते हम लोग। तो दिस इज द बिग डिफरेंस। और जैसे मैंने बताया 90% ऑफ योर सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन पेशेंस, ऑन सिटिंग आइडल, डूइंग नथिंग। स्टॉक मार्केट में अच्छी चीज अगर आपने ले ली है तो फिर उसको छेड़छाड़ मत करो, उसके साथ फिर स्टे इन्वेस्टेड रहो। और इसमें लेडीज काफी अच्छी तरह रह सकती है। और इंडिया में भी काफी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो लेडी हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है वो लेडी है। एडलवाइज की राधिका गुप्ता करके हैं, वो बहुत अच्छी फंड मैनेजर सीआईओ है। और दूसरे भी काफी, जैसे हमारे हेड ऑफ रिसर्च लतिका जेठा इज अ वेरी गुड फंड मैनेजर। मैं काफी बार कोई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मैं उसको फोन करके पूछ लेता हूँ कि भाई व्हाट शुड आई डू,
तो आई टेक मेनी आइडियाज फ्रॉम हर। तो आई फील कि लेडीज अच्छा इन्वेस्ट भी कर सकती है। और सी पहले के जमाने में यार अभी भी हम सबको पता है कि घर में जो बजट का जो मैनेज करना होता है वो लेडीज बहुत अच्छी तरह करती है। इवन दो इफ हर हस्बैंड इज नॉट अर्निंग मच, फिर भी उसका घर अच्छी तरह चल जाता है। वो क्यों चल जाता है? क्योंकि शी इज एबल टू मैनेज द मनी वेरी वेल। और उसके बाद भी वो जो छोटा पैसा होता है उसमें भी वो सेविंग करना जानती है। एट द एंड ऑफ द ईयर शी वुड बाय सम गोल्ड आउट ऑफ दैट सेविंग, या कुछ ना कुछ वो ऐसे एप्रिशिएटिंग एसेट बाय करेगी। ऐसा भी नहीं कि डेप्रिशिएटिंग एसेट बाय करेगी। शी विल बी बाइंग समथिंग व्हिच विल बी यूजफुल टू हर इन कमिंग टाइम्स, इन बैड टाइम्स। तो ये भी हमें लेडी से सीखना होता है। तो आई फील के उनका डीएनए में ही फंड मैनेजमेंट लिखा हुआ है, अच्छा फंड मैनेजमेंट लिखा हुआ है, एंड गिवन अ चांस दे विल एक्सेल इन दिस, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। राइट। सो थैंक यू सो मच कि फीमेल सिटी होशियार आपने बोला। यस सिद्धार्थ, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्री टॉक, राइट? आपने बहुत अच्छा हमें गाइडेंस दिया, जो भी एक्सपर्टाइज नॉलेज हमने शेयर किया। सो आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली टेक द एडवांटेज ऑफ इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट सिद्धार्थ, यू नीड टू गिव वन ब्यूटिफुल मैसेज टू द विमेन ऑन दिस मेंस डे। वैसे तो आई एम नोबडी टू एडवाइज अ वुमन। मैं तो बहुत छोटा हूँ और मैं तो हमेशा सीखता रहा हूँ मन से। तो एज सच आपने अभी एकदम पूछ लिया है तो मुझे कोई सोच भी नहीं आ रही है कि व्हाट शुड आई से टू हर। बट आई विल से वन थिंग कि पहले के जमाने में क्या था कि हमारा देश, जैसे हम बोलते थे, पुरुष प्रधान देश, राइट? तो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही सब कंट्रोल करता था, उसके पास ही सारे फाइनेंसेस रहते थे, फाइनेंशियल डिसीजंस भी वही लेता था। लेकिन अभी जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो मैं मानता हूं कि वुमन शुड आल्सो टेक एन इक्वल रोल इन दिस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दादा हेड ऑफ द फैमिली है, इवन दादी शुड बी द हेड ऑफ फैमिली। दादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसी तरह हस्बैंड वाइफ में भी वाइफ शुड टेक इंटरेस्ट इन फाइनेंसेस। हस्बैंड ने कहाँ इन्वेस्ट किया, क्यों इन्वेस्ट किया, उसको समझ होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। श्रुति, हमारा ही फ्रेंड महिंद्रा जो है एडवेंटिस में हमारे साथ था, वो 2 दिन पहले यहाँ मेरी ऑफिस पे आया था और उसने मुझे बताया कि सिद्धार्थ, मेरी वाइफ को मैंने एक डायरी दी है, डायरी में तेरा नाम नंबर दिया है कि इन केस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कॉन्टेक्ट सिद्धार्थ मांडलेवाला फॉर आवर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके पास हमारा ये इन्वेस्टमेंट है। तो सी, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और उसके अलावा ये तो एक छोटी चीज है, उसके अलावा इवन डिसीजन मेकिंग में भी फीमेल मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफी बार हम लोग मेल लोग शायद अच्छा डिसीजन ना ले पाए, तो इट इज बेटर, हम लोग जब कंसेप्ट में हम लोग कोई भी फैमिली प्लानिंग या कुछ भी करते हैं तो वी इनवाइट द फुल फैमिली। हम लोग ऐसा नहीं करते कि सिर्फ मेल मेंबर को बुला लिया। We try to invite the lady member also in our even our in presentations। हमारे जो presentations होते हैं वहां पे भी हम बुलाते हैं, क्योंकि see, वो लोग के पास भी एक अच्छा wisdom है, experience है, and they should use it। मेरा point यही है कि they should use this thing। और हस्बैंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब उसको पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इंटरेस्ट लेना है। बाकी पहले मैं काफी लोगों से, लड़कियों से पूछता था, वाइफ से पूछता था, तो वो लोग ऐसा बता देते हैं कि वी हैव 100% फेथ इन आवर हस्बैंड, वी ट्रस्ट आवर हस्बैंड, इसलिए हम कुछ नहीं जानते हैं। बट दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेथ तो है, ट्रस्ट तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में यू शुड टेक इंटरेस्ट और यू शुड नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर हाउस, और आपका सेविंग जो हार्ड अर्न सेविंग है वो कहाँ जा रहा है। और ये मैं इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर डेटा में दूं तो बहुत सारे पैसे अनक्लेम्ड अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। तो अनक्लेम्ड अकाउंट्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है उसने कभी वाइफ को बताया ही नहीं है, घर वाले को बताया ही नहीं है, और जब वो एक्सपायर हो जाता है तो वो पैसा अनक्लेम्ड हो जाता है। तो ऐसा पीपीएफ में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एलआईसी के पास ऐसा कितना पैसा पड़ा हुआ है, डिविडेंड्स कितने अनक्लेम्ड होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स कितने अनक्लेम्ड होते हैं। तो इसके वजह से फीमेल शुड टेक इंटरेस्ट। यही मेरा एक सुझाव है। इट्स रियली ब्यूटीफुल मैसेज, और ये सही में बहुत एक लोगों को ध्यान में रखने वाली चीज है जो आपने बताई सिद्धार्थ, कि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स
मे बी ड्यू टू इग्नोरेंस कि चलो हमें आता नहीं है, हमें नहीं सुन, ऐसा नहीं होता कि मेल्स नहीं बताना चाहते. समटाइम्स अगर वो बताना भी चाहते तो यू नो फीमेल्स आर लाइक कि मतलब हमें नहीं जानना है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते हैं. मतलब ये चीज की वजह से होता है जब आपको फंड की जरूरत भी है, या इट्स नॉट अबाउट ओनली दैट बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनीथिंग यू नो some funds has to be in your hand. So it was really wonderful talking to you, Siddharth, and wish you a very Same happy here. Men's Day. सेम ईयर श्रुति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन एंड बहुत मजा आया मुझे भी इंटरेक्ट करके एंड आई होप कि जो हमने इंटरेक्ट किया उससे सबको फायदा हो. Yes, it's really fruitful messages from you, Siddharth. थैंक यू. Thank you so much.